most basic. Uh, so when we talk about psychosis, the first thing which comes to our mind is the diagnosis called schizophrenia. Now, schizophrenia has a very interesting history, how it kind of became what it has become now. Previously, we thought we will talk about delusional disorders, but because the concepts are so intricately combined that you'll have to start from psychosis. Otherwise, full appreciation of different disorders won't be possible. I'm thankful for all of you who could make it today. Let's start with today's presentation. Now, delusion, which is a very common word, we use it in our common language also. Uh, but in psychiatry, coming from the tradition of Carl Jaspers, when he wrote the famous book called General Psychopathology, so he wrote that delusions are held with an extraordinary conviction and with an incomparable subjective certainty. Now, this concept is going to be the key concept which is going to differentiate between different types of psychotic disorders. There's a common perception that delusions, all kind of delusions, are probably overlapping or they have same psychopathology, same circuit issues. But delusion is a symptom which shows different kind of character in different disorders. Carl Jasper also said that these delusions, these strongly held certainties, are resistant to any kind of counter argument. No one can talk out a person who has a certain delusion. Saying that, we will see that even within schizophrenia, within different types of schizophrenia, we will see that different people, different illnesses have a bit of difference. There's a kind of a slight difference in quality, or the content is in a certain way. In some cases, for example, in mood disorders, it would be a bit coming from the prevailing mood. In memory issues, in dementia, the delusion will be coming from the faint memory issues, because the circuit, we know the circuit is primarily dealing with cognitive faculties, namely memory, perception. So if there is a problem in memory, a delusion can be created based on a faint memory. If you have a faint memory, some of the concepts can be formed over that faint memory. This is the commonest in dementia. Mood disorders may, the delusion is coming out of a delusional mood. The patient is very depressed. He might harbor delusions of poverty, delusions of guilt. Patient is in mania. He might come with delusions of grandiosity. Now, the patient is, it is said, professors used to say that the patient has not read the textbook. So the patient is basically a textbook. So when we see a patient, listen to what he has to say about his delusion, ask him different questions, how it started, what was the mood, what was the environment, how are things around you, were you using some medication, were you upset, were there any job problems, were you in love? So Sigmund Freud thought that love is also a delusion which nature plays upon ourselves. So what happens is, as we know the story, that for certain time a person falls in love with someone while most of the people tell the person to get out of it. And finally the reality comes once the person gets married. खैर ये तो it was a kind of मजाक की बात थी. Coming back to delusions, DSM-4 TR
Now we know DSM-5 is here, but DSM-4-TR was the kind of the highest mark, जहाँ पे the basic structure of psychopathologies was clear. So DSM 1, 2, 3, 4 में चीजें इतनी clear नहीं थी. We will just see that how things kind of evolved and kind of it probably developed in the current state. DSM-4 TR में delusions को इस तरह define किया गया था कि a false belief based on an incorrect inference about external reality that is firmly sustained despite what almost everyone believes and without any proof or evidence. तो हम आम अल्फाज में जो कहते हैं firm, false, unshakable belief. तो that is right. लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि the person, the patient is telling you something which is he is experiencing. एक ऐसा emotion है जो the patient के direct experience से आ रहा है. He doesn't has to kind of the patient doesn't has to come with kind of he has to bring the evidence. जब आप दिल के फैसले कर रहे होते हैं, जब आप दिमाग के फैसले कर रहे होते हैं, तो उसमें फर्क होता है एक तरह का. इसी तरह जो delusion वाला है, we don't know where is the fault, because even the matters of the heart are basically coming from the brain in a way. There's a circuit issue going on. So the person who is kind of telling or communicating a delusion is basically communicating his direct experience of the meaning he's feeling. That meaning could be coming through an emotion. The meaning could be coming from a faulty memory. The meaning could be coming from a wrong interpretation of a perception. And it's really very likely that the delusion is coming from out of nowhere, just out of thin air, you know. So that, just हमने बात की थी, that is called autochthonous delusion, delusion which is totally ununderstandable. Sometimes delusions are understandable in a way that you ask the questions, you ask questions and you can kind of a little bit relate to the person. क्या delusions आम population में होते हैं? So there was a study happened and उसमें they found that now we know that Germans are way ahead in psychiatry. Germans were the leaders, they still are in a way. So they found that 1/3 of Germans believed that they have some kind of superpower. We all of us, if we ask ourselves, all of us believe that we have certain kind of power. If you believe like this, share with us in the box and we'll see what kind of things you believe. Doctors usually believe that they have this something called messiah complex, you know, that they complex to khair hota hi hai, the way they think that they have to help everyone, but some believe that they can help everyone out, and if they are not challenging this thought, this could land them into some unwanted guilt or some kind of a depression. So delusions are in a way present in some kind of different severity in the normal population also. Okay, so I just thought of this example that some people think they can do some unexplainable thing. So I remember when I was in medical college, so the final year students, when they're young, they're thinking of all kind of corrupt or non-conventional or very conventional things. So there was this one guy, he was always saying, you know, if you look, I think it's coming from a movie probably, because so he used to say, I think it's coming from the movie, definitely. So he used to say, when you look at someone very deeply and you kind of concentrate and, you know, like the telepathic kind of thing, so the person is going to look back at you. ये मुझे लगता है शाहरुख खान वाला सीन उसने प्ले शायद किया हो उस जमाने में. So it is very much likely when you look at someone, there is a chance the person looks back,
And what happens is you take that one finding when the person looks at back at you and you discard all the competing evidence. अगर 10 दफा आपने देखा है और उसने एक ही दफा पीछे आपको देखा, so all you're going to do is remember that one thing. You're going not to remember all the other things. So इस तरह ये बड़ा cultural चीज है, ये बहुत cultural चीज है कि we kind of develop this kind of delusions. Comments are pretty अच्छे. Yushay is asking about deja vu phenomena. Dr. Sheen is also telling about sensitivity of vibration. ठीक है? So हम लोग बहुत सारे अल्फाज, vibration, vibes, energy, we all are trying to communicate some kind of our experience. तो जो हमारे दोस्त mental sciences में होते हैं, तो they are very interested कि कौन सी ऐसी powers हैं जो communication के बगैर transfer हो सकती हैं. And I personally think the communication is the shortest goal, you know. So whenever I talk to those people, my concentration is, if you have a strong communication, your body is communicating, you don't have to speak the words, your eyes are communicating. And sometimes two people are at the same wavelength. So the lovers, जो romantic जो होते हैं, ये तमाम लोग होते हैं, they can complete each other's sentences because they're probably coming from the common background, maybe they are commonly. तो आपने शुरू में देखा होगा लोग जो मिलते हैं तो आपस में मिला रहे होते हैं, अच्छा तुम्हारे भी पेरेंट्स लड़ते थे, मेरे भी पेरेंट्स लड़ते थे, तुम भी, तुम्हारा चाइल्डहुड भी परेशानी में गुजरा, मेरा भी गुजरा, तो जबरदस्ती मिला रहे होते हैं चीजें, हालांकि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं. There's a lot of other things going on. This is a case presentation. This is coming from the this is kind of an example from a book. A person comes, he goes to another person and says that, Mary, did you cut my heart out and put on the hook? And Mary says, no, I did not. And the patient says, acha, all right, okay. And he goes back. What does this example shows? What kind of delusion is it? So what it looks like is that it's kind of very obvious that the person is moving around, और लेकिन उसके ज़हन में एक बात आई, उसने पूछी, and it was very undoable kind of thing. The person's heart was kind of on the hook kind of thing, but the person is not really thinking. It's just like he's just more like experiencing some kind of a thought trouble. So this is actually an example of a delusional disorder, but we will discuss it. We'll come back to it later. The delusions in schizophrenia, all of you who have been into the psychiatric units, you must have seen that the delusions of schizophrenia are falling at a continuum. You are unable to understand that, for example, if somebody says, Dr. Saab, मेरा जो वालस है वो मेरे खिलाफ है, मुझे जबरदस्ती मेरी कहीं शादी कराना चाहती हैं, मुझे वालिद साहब मारना चाहते हैं, तो जब आप बात कर रहे हो तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड, इज इट अ ट्रू थॉट, इज इट एन ओवरवैल्यूड आइडिया, इज इट अ कल्चरल एब्जॉर्प्शन ऑफ अ थॉट, या इज इट अ डिल्यूजन. सो एक कॉन्टिन्यूम चल रहा होता है, वो एक खास लेवल तक कन्विक्शन आप देखते हैं, और कन्विक्शन जब आपको लगता है कि नहीं यार ये कन्विक्शन जरूरत से ज्यादा है, हालांकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट अ पॉइंट कि यार दिस कन्विक्शन किस लेवल की है. सम पीपल आर वैसे ही, वो जो देखें जो बेवकूफ है, he is fully confident about whatever he knows. अगर उसको थोड़ी बात भी पता है तो वो पूरा 100% कॉन्फिडेंट है. जो रिसर्चर है उसको पता है कि कोई भी बात हमें 100% नहीं पता चल सकती. There are always going to be some kind of p-value, 5% doubt, you know. So research is based on a little bit of doubt. तो बिल्कुल पता होने का मतलब है, it could be either of two things. Either you really know it, or probably you might be on the other side. तो जो समझदार बंदा होगा, probably Einstein said that the sign of an intelligent person is he's kind of all right with experiencing the other point of view also. He's not very fixed and rigid, and he can use different hats. Schizophrenia में जो delusion है, that could be somehow understandable.
अगर इट्स परसिक्यूशन, यू माइट थिंक अच्छा इसका कोई नेबर से लड़ाई हुई है, मे बी कोई लड़ाई, कोई बचपन में कोई लड़ाई हो, देयर माइट बी सम एविडेंस। जब एविडेंस सारी होती है तो फैमिली मेंबर्स भी जब भाई ने बिल्कुल सही कोटेशन बताई है, वो कोटेशन है इट इज द एबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड माइंड टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। एब्सोल्युटली राइट। सो स्किज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन जो होता है वो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल हो सकता है। डिल्यूजन आमतौर पे बनते हैं नॉर्मल कॉग्निशन से। सो नॉर्मल कॉग्निशन से जब आप ट्रैक डाउन कर रहे होते हो तो देयर इज काइंड ऑफ अ पाथवे गोइंग ऑन। समटाइम्स इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसेस, गुर्बत में उसी जैसे डिल्यूजन जैसे पॉवर्टी बन जाते हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं, तो यू माइट थिंक यू नो लाइक यू काइंड ऑफ एवरीबडी इज काइंड ऑफ पुटिंग यू डाउन, पुशिंग यू डाउन, एंड ये कन्विक्शन आपकी यकीन में बदल जाती है क्योंकि आपने उनको किसी को देखा। तो ये थोड़े से अंडरस्टैंडेबल है, ये क्वालिटी आप अप्रिशिएट करें और अगले जो पेशेंट्स आप देखें उसमें ये आपने ज़हन में रखना है। मेटाकॉग्निशन नहीं, अभी नहीं बात करें मेटाकॉग्निशन की, तो बाद में बात करेंगे। अभी वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट थिंकिंग, not about thinking about thinking. That would be another goal we'll discuss later. So what distinguishes schizophrenia delusions कि जो क्या ऐसी खास बात है which gives an emphasis of delusions? जिस तरह schizophrenia और आम बंदे में फर्क है और हमें फर्क पता चलता है, the impact, the severity, the psychosocial repercussions of those symptoms. इसी तरह delusion का भी impact वैसे ही पता चलेगा. The severity of delusion, the conviction with which the person is protecting the delusion. Sometimes he's not going to share with you because उसका देखो normal circuit तो चल रहा है. अगर उसको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनने वाली, कल हमने बात की थी कि don't assume that the patient is trusting you. Don't assume that patient wants to believe you. Don't think he wants to help even. So ये बातें आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाती हैं, उसकी आई कांटेक्ट से पता चल जाती हैं, उसके बिहेवियर से पता चल जाती हैं. बहुत सारी डिल्यूजन्स हैं जो बहुत मोटी मोटी हैं, उसमें सबसे कॉमनेस्ट 80% तक जो है दैट इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. परसिक्यूशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच आई थिंक प्रिमिटिव टू द ह्यूमन माइंड. जब हमारी कोई बात नहीं सुन रहा होता, जब कोई हमारे ध्यान नहीं दे रहा होता, वी गेट हर्ट, आवर सेल्फ एस्टीम इज हर्ट, एंड द माइंड स्टार्ट्स कुकिंग स्ट्रेंज काइंड ऑफ थॉट्स. एंड समबडी क्रिटिसाइजेस अस, हमें बहुत गुस्सा आता है. कोई हमें माँ बाप भी तस्वीर करे या कोई बाहर, तो बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन 10-100 टाइम्स किसी तरह भी. सो persecutory delusions could be understood if you ask him about different things. और जब आप उसको बातें खोल खोल के यू क्लैरिफाई डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, वो उसको समझ आ रही हो, वो आपसे बात माने, तो बेसिकली जो when once we are kind of discussing with the person, what we are trying to clarify is कि we are helping him think aloud. क्योंकि हम दिमाग में घुस के तो नहीं देख सकते कि यहाँ पे डिल्यूजन पड़ी हुई है. Only way is कि we start having a communication, we have a to and fro discussion. जैसे अफशीन ने कहा कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा पैरानोया है. पैरानोया होता है अभी आजकल बिकॉज इट्स कोविड में वैसे भी जब एक दूसरे से आप बहुत घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, सहमे हुए हैं. अच्छा, फिर डिफरेंट हमें पता है डिफेंस मैकेनिज्म, मिसाल के तौर पे जो साइकोटिक है, इफ ही इज लुकिंग एट यू सस्पिशियसली, आप भी वैसे ही उसको देखेंगे. आप भी देखेंगे कि व्हाई इज ही लुकिंग सस्पिशियसली. अनलेस यू आर ट्रेन्ड, you will remove your reactionary behavior or non-verbal kind of gestures. Otherwise आप वैसे रिएक्ट करेंगे जैसा, मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई मारने के स्टांस में आता है तो involuntarily you will kind of develop an opposing complementary kind of stance. तो जब वो साइकोटिक देखते हैं कि यार देखा मैंने ये प्रेडिक्ट किया था और ये तो बिल्कुल काइंड ऑफ ठीक है. सो we are all, the society is full of kind of paranoia, persecution. हम एक दूसरे के पीछे एक दूसरे की बुराइयां भी करना अपना फर्ज समझते हैं. we kind of want to backbite, दूसरे की सीट खींच ली, दूसरे की
कुछ बॉस कुछ कहते लगा दी, तो ये बड़ी कॉमन सी एक बात है, पूरी दुनिया में कॉमन है. आई थिंक इट्स मोर लाइक अ ह्यूमन बिहेवियर, इट्स नॉट अ बिग इशू. बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन, इसकी जो प्रोसिक्यूशन है वो एक निराली किस्म की है. डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है कि अनड्यू इम्पोर्टेंस टू द यूजुअल जो परसेप्शन या स्टिमुलाई. आप अगर जा रहे हैं सड़क से तो आप कहेंगे कि यार ये बंदा मुझे खास तरह से देख रहा है. डिल्यूजन से पहले आइडियाज और रेफरेंस आएंगे. आइडियाज और रेफरेंस होता है कि आपको ख्याल आना कि लोग मुझे खास नजर से देखते हैं, या किसी स्टिमुलाई का कि किसी जगह पे होना उसका एक खास मकसद है. जब उस बात पे आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वो पक के इट्स काइंड ऑफ क्रिएट, इट बिकम द डिल्यूजन. भुनी हुई किस्म की थॉट बन जाती है. ठीक है, एंड यू आर नॉट एबल टू, यू डोंट वांट टू क्वेश्चन. अच्छा, आपको नॉर्मल भी कोई बात आपकी, अगर कोई बात आपको बेसिकली अगर आप नॉर्मल बात भी करें और कोई आपकी बात रद्द करे तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, आप उसको डिफेंड करते हैं. तो तमाम, जैसा तैयब कह रहा है, कंस्पिरेसी थ्योरी हो सकती है. बिल्कुल, बिकॉज वी आर ऑल काइंड ऑफ, हम एक दूसरे कम्युनिटीज भी हम एक दूसरे के खिलाफ हैं. हम एक दूसरे के मुल्क भी एक दूसरे के खिलाफ हैं. रिलीजन भी हम सबके एक दूसरे के खिलाफ बन जाते हैं. हम हर किस्म का हम बेसिकली ना, इट्स wide problem. I don't want to go to sociology at this moment. Let's focus back on the delusion. Grandiosity and nihilistic. Sometimes आपके nihilistic delusion होते हैं कि you reject everything. if आप कहते हैं कि जी मेरे पेट में कोई ऑर्गन नहीं है, मेरे दिमाग में कोई दिमाग, मेरे सर में स्कल में कोई दिमाग मौजूद नहीं है, हर चीज को डिनाई करना शुरू कर देते हैं. तो हर डिल्यूजन का मुख्तलिफ किस्म के फैंसी नाम मौजूद हैं. अभी मैंने बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी विल डिस्कस सम फैंसी टर्म्स आल्सो. अ ब्रीफ ओड और ब्रीफ मेंशन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया साइकोसिस में. अपने जमाने के गेम चेंजर्स, अपने जमाने के गेम चेंजर्स जो थे वो कौन से लोग थे. तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री, मेरा अपना इंटरेस्ट भी है, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना हो. एक दफा एक हाउस ऑफिसर ने मुझे कहा कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो द नेम्स. तो मैंने कहा यार ये आपका अपना इंटरेस्ट है, इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट, लेकिन समटाइम्स यू आर सो मच इन लव विद द फील्ड और द कॉन्सेप्ट्स, यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, यू वांट टू नो द होल हिस्ट्री, हाउ इट बिकेम, व्हाट हैपेंड ना. सो मैंने आपके लिए बड़ा ब्रीफली से 4 बातें करूंगा. अभी पिछले दिनों आपको पता होगा कि एक हमारी एक्ट्रेस है बड़ी मशहूर, उसने एक नया प्रोजेक्ट किया करना है एक नए ड्रामे में जिसमें वो एक साइकोटिक खातून का रोल अदा कर रही हैं. तो उन्होंने अपने किसी ट्विटर शूटर में कहीं लिख दिया, मैंने खुद नहीं देखा लेकिन आई रेड द न्यूज, तो उसमें उसने लिख दिया कि स्किज़ोफ्रेनिया में देयर इज अ साइन कॉल्ड ऑटिज्म. आप लोगों, उसके बाद बहुत सारा बैकलैश आया, लोगों ने बड़ा उसको लताड़ा कि तुम्हें नहीं पता, एक्टर्स डोंट डू देयर होमवर्क एंड यू नो लाइक बाहर के लोगों से कंपेयर किया. आप लोगों ने अगर सुना है तो मुझे बताएं कमेंट्स में. Number 2, do you think autism is a sign of schizophrenia or not? I will come back to this point a little later. Kaplan जो है, Kaplan was the first person, he's one of my favorites. Kaplan ने एक बहुत जबरदस्त टेक्स्ट बुक ऑन साइकियाट्री लिखी about in 1800s something, in 1895 या 1900 या 1905 के एरिया में. और उस बुक में उसने फर्स्ट टाइम, इससे पहले तमाम बीमारियों को एक ही समझा जाता था, तमाम पागलों के लिए एक ही लफ्ज होता था, जर्मन में उसको कहते थे अनहीट साइकोसिस. अनहीट साइकोसिस का मतलब था अंग्रेजी में यूनिटरी साइकोसिस. यूनिटरी साइकोसिस, यूनिटरी साइकोसिस का मतलब था कि एक ही बीमारी है हर तरह की. तो इसने देखा कैप्लन ने, देयर आर 2 बिग ग्रुप्स. एक ऐसा ग्रुप है जो ठीक हो जाता है कुछ अरसे के बाद, दूसरा ऐसा ग्रुप है जो ठीक नहीं होता बल्कि यंग एज में शुरू होता है और इस प्रोग्रेसिवली डिटेरिएट हो जाता है. तो उस जमाने में डिमेंशिया का नाम भी रखा जा रहा था. जो पैथोलॉजिस्ट था जिसने अलॉय अल्जाइमर्स प्रॉब्ली उसने, डिमेंशिया प्रीकॉक्स का मतलब होता है यंग डिमेंशिया. यंग एज में जब डिमेंशिया जैसे अलामात देखें तो कैप्लिन ने इसको डिमेंशिया प्रीकॉक्स का नाम दिया. बाद में कैप्लिन ने देखा कि नहीं यार, ये नॉट, इट्स नॉट ओनली इन यंग पीपल, इट्स आल्सो इन
older people also. फिर वो एक लंबी बहस चलती रही कि ओल्ड एज में सेपरेट होता है कि नहीं, वेरी ओल्ड एज में सेपरेट होता है कि नहीं, इनके प्रोग्नोसिस डिफरेंट होते हैं कि नहीं. तो बहुत सारी इसमें डिस्कशंस हो सकती हैं, अभी इसको भी डीलिंग करेंगे. ब्लाउलर वाज द नेक्स्ट पर्सन जिसने स्किज़ोफ्रेनिया का नाम रखा बेसिकली. सो स्किज़ोफ्रेनिया, ब्लाउलर ने इसका नाम रखा. आई थिंक इट वाज अमेरिकन. एंड ब्लाउलर थॉट के 4 सिम्टम्स की उसने बात की. उसमें वन वाज ऑटिस्टिक साइन, वन वाज a lack of association, one was ambivalence, confusion, करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना, and one was affective issue. So basically he thought कि mood का problem हो सकता है, ambivalence का हो सकता है, you have to do or not, to be or not to be, association का, and उसने कहा association is the core symptom of the illness. And मैं उसके साथ पूरी तरह मुफाहमत है. I totally agree with him. हमने पहले भी बात की थी कि थॉट स्ट्रक्चर में लैक ऑफ कनेक्शन, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन इज द प्राइमरी फॉल्ट. और तमाम बातें, तमाम इंटरव्यूज का मकसद ही वो निकालना होता है. दैट इज कॉल्ड loosening of association. That is like a hallmark. So he thought that was the primary symptom, and he said all other symptoms are kind of secondary symptoms. Secondary symptoms में उसने कहा delusion भी secondary है, hallucination भी secondary है. It's not, it doesn't matter. It's not that important. Schneider was a third game changer. Schneider ने अब कोशिश हो रही थी कि कुछ ऐसा करें that the diagnosis is more crisp, it's more succinct, it is more free from fault. जिसका diagnosis बनाए वो diagnosis बन जाए, बाद में change ना हो जाए. तो he came with a list of symptoms called first rank symptoms. First rank symptoms are named as Schneider's first rank symptoms. और इसका मतलब है कि वो symptoms जो अगर मरीज में मौजूद हों तो इसका मतलब है कि the possibility of schizophrenia is high. There is a high possibility कि it's schizophrenia. अगर ये नहीं है तो probably हो सकता है, फिर भी schizophrenia हो सकता है, लेकिन so इसका मतलब they are very highly frequently seen in schizophrenia. मैं briefly I'll go through these symptoms. ये 3-4 बड़े ग्रुप्स हैं. एक ग्रुप है जिसको कहते हैं मेड थॉट्स या मेड फीलिंग्स या मेड एक्ट्स. का मतलब ये कि द पर्सन्स थॉट, फीलिंग्स और बिहेवियर इज नॉट अंडर द पर्सन्स कंट्रोल, रादर द पर्सन थिंक्स कि समबडी एल्स इज कंट्रोलिंग द पर्सन. क्योंकि हमें पता है कि ईगो बाउंड्री डिसॉल्व हो रही होती है. जिस तरह अल्कोहलिज्म के साथ ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो रही होती है और देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मूवमेंट ऑफ द जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऑलमोस्ट उसी तरह जो स्किज़ोफ्रेनिया है कंसेप्ट मेरे ज़हन में आता है कि उसकी ईगो बाउंड्री खराब हो रही है. उसको लग रहा है कि टीवी की शुआएं भी मेरे दिमाग में अंदर आ रही हैं, मेरी बातें बाहर आ रही हैं. तो एक अजीब किस्म के डिफ्यूजन का शिकार है. तो यहाँ पे कभी उसको लगेगा कि सोचें मेरी नहीं है, आपकी है, फीलिंग्स मेरी नहीं है, किसी और की है, जो मैंने एक्ट कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है या कोई और करवा रहा है. ये ग्रुप है मेड थॉट्स, फीलिंग्स और एक्ट्स का. दूसरा ग्रुप है थॉट विथड्रॉल, इंसर्शन या ब्रॉडकास्ट. कि सोच मेरी कोई निकाल रहा है, सोच कोई डाल रहा है, या मेरी सोच ब्रॉडकास्ट हो रही है, बगैर मैं बताए कोई ना कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है. तीसरी है हेलुसिनेशन से हवाले से कि जो भी मैं सोचता हूँ दैट बिकम्स एन ऑडिबल थॉट. पीपल कैन हेयर इट, आई कैन हेयर इट. कभी कभी लगता है कि सोचें लोग कोई बैठा कमेंट्री कर रहे हैं आपके ऊपर, वॉइस कमेंटिंग ऑन ईच एक्शन. और आमतौर पर जब आप पूछते हैं तो कहीं और सब गालियां दे रहे हैं, गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहबी गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं. और कई दफा होता है डिस्कशन चल रही है, पीछे डिस्कशन चल रही है, देयर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन, 2 or 3 people आर कमेंटिंग अबाउट यू इन द थर्ड पर्सन. तो जो पहली कमेंटिंग थी दैट वाज सेकंड पर्सन, और अगर 2 बंदे बात कर रहे हैं आपके बारे में दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. एंड दीज आर ऑल पैथोग्नोमिक ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या डायग्नोसिस बहुत पक्का हो जाता है अगर ये सिम्टम्स मौजूद हों. फिर है सोमैटिक पैसिविटी. सोमैटिक पैसिविटी मीन्स के
जो आपके स्टैटिक वेलोसिटी मींस के जो आपके जिस्म है उसके जो फीलिंग है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि इट्स वेरी वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ द environment or the people around you or even the machines. तो आज के ज़माने में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि कोई मुझे देख रहा है, किसी ने कैमरा लगा लिया है, कोई मशीनरी फिट है। पुराने ज़माने में या गांव में या कुछ और इलाकों में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि किसी ने जादू कर दिया मेरे ऊपर, कोई टोना हो गया मेरे ऊपर, इस तरह की चीज़ें। सो अब ये 3-4 बड़े ग्रुप्स बन गए: मेड, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्ट्स, थॉट विड्रॉल, इंसर्शन, ब्रॉडकास्ट, ऑडिबल थॉट्स, कमेंटिंग, डिस्कसिंग, सोमैटिक पैसिविटी। और ये जो आखिरी वाला ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट्स कॉल्ड डिल्यूजनल परसेप्शन। इसमें परसेप्शन बिल्कुल ठीक है, बल्ब चल रहा है, एकदम से फ्यूज हुआ है, जैसे फ्यूज हुआ है आपको परसेप्शन पता चली कि बल्ब फ्यूज हो गया, लेकिन इसका आपने एक डिल्यूजनल किस्म का मतलब निकाल लिया कि क्योंकि बल्ब फ्यूज हुआ है, दैट मीन्स माई बिलवड इज गोइंग टू डाई। ठीक है, उसमें कोई अजीब किस्म का उसमें हो सकता है आपने मेंटल कनेक्शन बना लिया। यहाँ पे यू हैव टू आस्क द पर्सन दैट व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट इज इट, व्हाई हैव यू थॉट और टॉक्ड अबाउट दिस थिंग इन दिस फैशन। तो ये बात करना बहुत जरूरी है उससे, बिकॉज हो सकता है ही हैज सम एक्सप्लेनेशन, हो सकता है टू बी अ बिट वियर्ड एक्सप्लेनेशन, हो सकता है आपको उसकी एक्सप्लेनेशन ना पसंद आए, but do ask him. It might make some kind of sense. You might be able to relate to the person in some kind of way. So these are the Schneider's first rank symptoms. कुछ और सिम्टम्स भी हैं जिसको स्नाइडर सेकंड रैंक सिम्टम्स कहा जाता है, अभी उस पर बात नहीं करते। वो इसके अलावा जो भी साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, दे आर ग्रुप्ड अंडर स्नाइडर्स सेकंड रैंक सिम्टम्स। तो उसके आप लिस्ट देख सकते हैं, उसमें सॉफ्ट साइंस होते हैं जैसे परप्लेक्सिटी, कंफ्यूजन, इस किस्म की चीज। उस जमाने में 1930-40s की बात हो रही है, 50s की बात हो रही है, न्यूयॉर्क में जब उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो जो मरीज आते हैं उनमें 60% लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है न्यूयॉर्क में। जब लंदन में उन्होंने टेस्ट किए, डायग्नोसिस करते थे तो उन्होंने यहाँ तो 30% है। तो अब बहुत कंफ्यूजन हो गई कि यार ये क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, our system is at fault, why is it such a big difference। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ दैट वाज कॉल्ड यूके यूएस क्रॉस नेशनल प्रोजेक्ट। इसमें उन्होंने एक जैसे लोग इस्तेमाल किए, एक जैसे क्राइटेरिया इस्तेमाल किए, एक जैसे एक्सपर्ट इस्तेमाल किए। तो रिजल्ट्स वर वेरी गुड एंड दे फाउंड दैट द सेम प्रेवलेंस इज अकरिंग एट बोथ द प्लेसेस। एक जितने मरीज हैं दोनों जगहों पे। इसके बाद एक और स्टडी WHO ने बहुत बड़ी स्टडी की जिसमें बहुत सारे ममालिक शामिल थे। It was I think international pilot study of schizophrenia patients। तो उसमें मजीद ऐसी एविडेंसेस आई कि the research category was more improved। The other landmark was the Fenner's criteria। ये सेंट लुई इन मिजोरी प्लेस, वहाँ पे उन्होंने फेनस ने एक क्राइटेरिया बनाया जिसमें बहुत बड़ा चेंज आया। DSM-2 से जब DSM-3 आया, दैट वाज द बिगेस्ट चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस। 3 से 4 में इतना चेंज नहीं आया, 4 से 4R में नहीं चेंज आया, 5 में इतना चेंज नहीं आया। ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे कर देते हैं चीजें। लेकिन 2 से 3 में व्हाट दे एडेड वाज दैट देयर वाज अ क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन, देयर वाज अ लैब के बारे में उन्होंने हाउ टू रूल आउट सर्टेन थिंग्स, डिलिमिटेशन, फॉलोअप स्टडीज और फैमिली स्टडीज। इसका मतलब ये कि उन्होंने लिमिटेशंस का मतलब है कि सम थिंग्स दे रूल्ड आउट काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये अभी भी एक कॉम्प्लेक्स किस्म का था। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अभी मौजूदा जो हमारा सिस्टम है वो what does DSM-4TR says, what DSM-5 says, what ICD-10 और 11 says। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक चीज सेट हो गई थी कि हमेशा आप जब भी DSM बनेगा there will be a clinical description। तो अब आप DSM की
when you see the basic structure, तो हमेशा पहले symptoms होंगे, description होगा, उसके बाद कुछ चीजें रूल आउट की जाएंगी और फिर कुछ कमेंट्स ड्यूरेशन पे होंगे या कोर्स पे होंगे। DSM 2 से 3 में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात साइकोसिस के हवाले से दैट वाज द कोर्स ऑफ इलनेस। ये कोर्स ऑफ इलनेस का जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, 6 मंथ्स का टाइम वहां पे रखा गया। तो एक्यूट साइकोसिस आउट हो गए जो पहले होते थे, फिर बाद में गायब हो जाते थे, कुड बी अंडर इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, स्ट्रेस, मूड डिसऑर्डर्स। तो 6 महीने के अंदर चीजें बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। अभी भी हम आमतौर पर किसी को थप्पा लगाने से पहले, उसको कहने से पहले कि जी इट्स स्किज़ोफ्रेनिया, वी टेक सम टाइम, वी ट्राई टू रिव्यू, हम उसको प्रोविजनली डायग्नोसिस दे देते हैं, लेकिन वी टेक सम टाइम, वी लेट द पर्सन कम सी और इस तरह आगे। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक और काम किया कि दे कैरिड आउट दिस रिसर्च डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, और उन्होंने कहा कि रिसर्च के लिए तो 6 महीने ठीक है, लेकिन पेशेंट जो है उसको अगर 2 हफ्ते भी सिम्टम्स आते हैं तो दैट इज प्रीटी गुड, वन शुड डायग्नोज एंड स्टार्ट ट्रीटिंग। तो जब पब्लिक सर्विस की बात आती है, आप कम्युनिटी में हेल्प कर रहे होते हो, तो अ लिटिल बिट, हफ्ता 2 हफ्ता इज टू मच, इज प्रीटी मच गुड काइंड ऑफ पीरियड टू डायग्नोज समवन, और उस पर आपको ट्रीटमेंट देना होता है, देना चाहिए। जब रिसर्च करनी हो तो आप बेशक उन लोगों को रख लें जो 6 मंथ्स पूरे कर चुके हों, ताकि गलती का इस्तेमाल ना रहे। अच्छा, so now we will just quickly go through the classification. ये this is most of you already know about this, but जो नए students हैं, the one who are doing the house job, तो उनके लिए अहम भी है, बहुत बेसिक बात भी है। सबसे पहला सवाल साइकोसिस में, we are going to ask ourselves whether 2 of the following symptoms are present during the past 1 month. So delusion, hallucination, disorganized speech or disorganized behavior, or negative symptoms. इसको कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं टॉल डार्क हैंड सिस्टम से, कि 2 things are about this delusion, hallucination, disorganized speech is basically a thought disorder, and that इन तीनों चीजों की वजह से behavior is kind of disturbed. तो ये जो पहले 4 symptoms हैं, these are called positive symptoms. ये जो पहले 4 symptoms हैं, there are positive symptoms because something new has been added. A new delusion has been added, a new hallucination has been added, a new speech problem has been added, a new thought dysfunction has been added, and a new problematic behavior is added. The पांचवा symptom है, that is the negative symptom. ये वो symptom है जो बहुत खतरनाक symptom है. It's a sign of a severity because you're losing something very basic. You're kind of losing it. तो इनमें से अगर 2 symptom आ जाए 1 महीने के लिए, so then you proceed to the next point. अब जब symptoms आ गए, now you are going to determine whether these symptoms are have such an impact that they are causing a significant dysfunction in the social or the occupational function of the patient. तो उसमें आप work related, self care, interpersonal relationships, you probe all these areas. So if somebody is not able to take care of himself, is not able to maintain his basic relationships, he is not able to work with his co-workers, so this could be one of the signs of illness. Or always remember, everyone is not going to have a full-fledged destruction in all these affairs. A lot of people might have problems in these areas, but they are not psychotic. साइकोसिस में जब पहले आपने सिम्टम्स देख लिए, टॉल TDH वाले, hallucination, delusions, thought issues, negative behavior, speech behavior, अब आपने देखना है कि if they fulfill a time period of 1 month with active symptoms, या अगर ट्रीटमेंट हो गया तो कुछ रेजिडुअल सिम्टम्स मौजूद हैं, तो 6 महीने के बाद you can strongly, with confidence, you can say that this is a case of schizophrenia. उससे पहले you can use words like it's a probable schizophrenia.
अभी बात खत्म नहीं हुई. Now you have to rule out those conditions which look like schizophrenia. Schizophrenia के लिए you have to rule out the mood disorders, major depressive, manic episodes, and you have to see कि अगर कोई mood disorder है भी तो उसका जो duration है that is too less, is of a less kind of time than the psychotic symptoms. तो schizoaffective एक controversial किस्म का diagnosis है. It was created in about probably I think 1955. Cassanin was a person. Schizoaffective का मतलब है कि psychotic issue भी है और mood disorder का issue भी है. Mostly they are going and occurring at the same time. Or but one of the most experienced doctors, psychiatrists जो हैं, his name is Professor Farid Minhas Malik. Farid Minhas साहब का कहना है कि he was the dean of psychiatry. So he says that he has never really seen a schizoaffective because होता ये है कि बड़ा मुश्किल होता है हिस्ट्री के बेसिस पे पता चलाना कि whether somebody had mood symptoms and then psychotic symptoms came or whether somebody had psychotic symptoms then mood. So लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि जब आप हिस्ट्री देते हो तो मरीज हिस्ट्री ऐसे दे रहा होता है कि वो जो हिस्टोरियन है वो फंस जाता है इस चीज में बिकॉज वो सोच रहा होता है कि हाँ इतने स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस थे, इतने मूड डिसऑर्डर्स के केसेस थे, तो कुछ तो स्किज़ोअफेक्टिव के भी होने चाहिए. तो आप अगर देखो तो कीप एन ओपन माइंड. एकेडमिक डिस्कशन में आप रख सकते हो लेकिन प्रैक्टिकली इट्स काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट डिसऑर्डर टू डिफेंड और डायग्नोस आल्सो. इससे अगला पॉइंट है जो हमारा सबसे बेसिक पॉइंट है. वी ऑलवेज हैव टू रूल आउट एन ऑर्गेनिक कंडीशन एंड वी हैव टू रूल आउट a substance abuse possibility, cannabis or any other drug. ये categories, I'm sorry, I'm using the DSM-4 TR. Now the current DSM-5 is called DSM-5. लेकिन DSM-5 में ये categories खत्म हो गई हैं. ये categories मैं आपको दिखाना चाह रहा था because it's very informative. बाहर की दुनिया में बहुत सारी categories खत्म होने का reason ये भी है कि they have early screening programs. They have prodromal recognition system in place. They follow up histories. बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, जल्दी मैनेजमेंट कर लेते हैं. लेकिन पाकिस्तान में अभी भी 10-20 साल के लोग आ रहे हैं. तो ये जो कंडीशंस हैं यहाँ पे मेरा ख्याल अगले 20-30 साल तक चलती रहेंगी. आप अभी भी if you visit Punjab Institute of Mental Health, you can see catatonic patients, you can see disorganized patients. The other name for disorganized is also called hebephrenic. This is the extreme breakdown of a person who is unable to take care of his daily kind of habits. खाना भी खराब, बाथरूम जाना खराब हो गया, बताना भी खराब, बात करना भी, महसूस करना भी, emotions feel करना भी खराब. So everything is kind of on the downside. Paranoid is very common kind of thing. Catatonic, the person has very strong motor issues. Catatonia means a problem in tonicity. Tonicity means जो मसल टोन है उसके अंदर कुछ मसले आते हैं. कुछ चीज़ों ने मैंने बयान की हुई हैं. इमोबिलिटी, मरीज का हाथ सख्त है तो इट्स नॉट, यू आर नॉट एबल टू मूव इट. सो जब आप मूव करते हो देयर इज लॉट ऑफ रिजिडिटी. स्टूपर भी हो सकता है. पेशेंट का स्टूपर ऐसे होगा कि पेशेंट माइट बी स्टूपरस लेकिन वो बैठा होगा, ही वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट विद यू. म्यूटिज्म हो सकता है, इज नॉट टॉकिंग. वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको अगर उसके हाथ पांव मरोड़ो के ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, बहुत आसानी से किसी भी मुश्किल जो आप आम बंदे के लिए मुश्किल डायरेक्शन या कुछ पोस्चर होता है वो इनको आप आराम से कर सकते हो. एम्बिवलेंस होता है, आप हाथ मिलाते हो, कभी आपके हाथ आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं, कभी आगे कभी पीछे. सो देयर इज दिस काइंड ऑफ ambivalence that shows that there is an ambivalence, not clear कि मिलाना है नहीं मिलाना, पता नहीं चल रहा दोस्त है दुश्मन है, that kind of thing.
एक और कैटेगरी है सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। अगर कोई खास सिम्टम नजर नहीं आ रहा तो उसको आप कह देते हैं कि सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। रेजिडुअल, अगर एक पेशेंट आपने देखा, उसको दवाई शवाई दी और इलाज के बाद कुछ सिम्टम्स रह गए तो उसको आप रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया कह सकते हो। अब ये कैटेगरीज उस तरह एकेडमिकली कम होती जा रही है इस्तेमाल, लेकिन आम इस्तेमाल में भी इट्स वेरी मच कॉमन। डिल्यूजन्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया फ्लेक्सिबल हैं। आप पेशेंट से बात करोगे, थोड़ी देर हो सकता है आपकी बात मान ले, बातों में आ जाए, डिल्यूजन तो रहेगा वहां पे, लेकिन द पर्सन इज नॉट गोइंग टू या माइट नॉट बी एबल टू फाइट विद यू, माइट नॉट बी वेरी थ्रेटनिंग, क्योंकि वो ही इज इन अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। डिल्यूजन तो एक पार्ट है ना, उससे हेलुसिनेशन भी आ रही है, आवाजें भी आ रही हैं, उसका ईगो सिस्टम भी खराब हुआ है, ख्याल भी अपना नहीं रख रहा। तो किताबों में वो इस तरह बयान करते हैं कि डिल्यूजन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया आर फ्लेक्सिबल। अगर आप उनको रीअश्योरेंस करोगे थोड़ी देर के लिए, दे माइट बी एबल टू लिसन टू यू। डायग्नोसिस में फिर बात आती है, वो कहते हैं कि if there is a history of an autistic disorder or another pervasive developmental disorder, the additional diagnosis of schizophrenia is made only if prominent delusions or hallucinations are also present for at least 1 month. तो ऑटिज्म का लेटर बनाएं, schizophrenia उसमें ऐड कर सकते हैं। We're just coming to the end. I'm just going to use 1 or 2 examples of the cases. और एक केस है, एक बंदा है, उसको he's about 51 years of age. He comes to the OPD or doctor, and the symptom, and the person is very well accomplished, extraordinary, and he has the symptoms of paranoid delusions. He's using those, he's kind of remembering those conversations which never happened. क्या क्या सोचोगे आप? What kind of differentials would you like to entertain over here? You can interact. आप अपना unmute करके you can interact over here. So person comes with the complaints of, जो भी उसकी complaints हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे लगता है मुझे कोई मारना चाह रहा है। जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऐसी बातें करें जो कभी ऐसी नहीं हुई। इसने कहा है कि आप कि मेरे बड़े भाई ने मेरा जमीन हथियाना चाहते हैं, मेरी बीवी पे उनकी बुरी नजर है, उल्टी सीधी बातें नाप शनाप बोली जा रहा है। और डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं हुआ। तो आउटडोर में आप उससे एज पूछते हो 51 और बातचीत करते हो, देखते हो सब कुछ, तो कौन कौन से डिफरेंसेस आपके ज़हन में आ सकते हैं यहाँ पर रफली? If you want to write on the chat box, you can put over there also. जी मोहम्मद यूशे, आप would you like to comment? जी सर, वो मैं असल में चैट बॉक्स पे लिख रहा था, मैं कमेंट कर देता हूँ कि जी सर, 2-3 फॉरेन तौर पे डायग्नोसिस आ सकते हैं विदाउट नोइंग मच अबाउट द केस। आइदर ही इज जस्ट एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, कोई स्ट्रेस उसको चल रहा है जिसकी वजह से अब उसकी थोड़ी सी मतलब कि अभी कोई क्या नहीं, ये 18 मंथ से उसको ये इशू चल रहा है कि 18 मंथ के बाद वो ठीक हो गया? आपने जो नीचे लिखा हुआ आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट। ये ठीक हो गया, 18 महीने के बाद ठीक हो गया। 18 महीने के बाद ठीक हो गया। अब अगर ये आपके पास फौरी तौर पे आया है तो अगर प्रोविजनल बनाया जाएगा तो आइदर हाइपोमेनिया हो सकता है कि हाइपोमेनिया में थोड़ा सा पहले इसको शक था भाइयों पे, शुरू से इसकी जरा थोड़ी सी इस तरह की पर्सनैलिटी थी कि ये शक करता रहता था, तो अब चूंकि वो हाइपोमेनिया हुई तो वो पर्सनैलिटी थोड़ी सी ज्यादा बाहर आ गई और वो ज्यादा अब शक करना शुरू हो गया। सेकंड, इट कुड बी के टोटल प्योरली डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो सकता है कि आप उसको जितना मर्जी समझाओ वो फिर भी कह रहा है कि मेरे भाई तो मुझे कत्ल ही करना चाहते हैं, जबकि उसके भाई साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं भाई हम तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहते।
वो फिर ठीक है, कहेगा बहुत नहीं, मुझे तो पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पीछे तुमने उसको पैसे भी दे दिए हुए हैं। ठीक तो है। इस तरह का कि या तो प्योर डिलूजनल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर सर सिंपल वो वाला फिर आपका पॉइंट आ जाएगा कि इट्स वेरी हार्ड टू पॉइंट आउट कि आइदर इट इज अ मूड डिसऑर्डर और अ साइकोटिक डिप्रेशन, और इट इज जस्ट स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, जो कि था कि साइकोसिस पहले आ गया, अब नाउ देयर इज अ मूड डिसऑर्डर, या शायद पहले वो इतना इशू नहीं था, वो अपने थॉट्स कंट्रोल करके बैठा हुआ था, अब इट हैज ओके ओके, ज्यादा इश्यूज आना शुरू तो हो गए। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। तो एनीबडी वुड लाइक टू मेक कमेंट? जिब्राइल मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि कैन इट बी अ केस ऑफ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर? सर पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर 18 महीने बाद ठीक होना इज वेरी अनलाइकली। अच्छा, ठीक ठीक। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो होगा कब? सर वो तो बचपन से ही चल रहा होगा ना, ठीक है, एक किस्म से। ओके, बिल्कुल ठीक ठीक, सही सही। हम आज की बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक। मेरे ख्याल में 40-50 मिनट्स हो चुके हैं। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर टुमारो। ये जो एग्जांपल थी, जस्ट इससे पहले कि हम इस बात को काम करें, ये एग्जांपल जो थी इसी तरह जो मैंने लिखा हुआ है, दिस वाज व्हाट हैपेंड टू न्यूटन इन 1693. Newton was having these symptoms, and he was having paranoid delusions, and he reported conversations which never happened. And at age 51 he had his symptoms, और उसके बाद 18 महीने के बाद he some kind of he got better. तो एक ख्याल किया जाता है कि शायद उसको कोई लेड पॉइजनिंग या कोई ऐसा मसला था, कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन बहरहाल आई थॉट इट वुड इंटरेस्ट यू किस तरह ये पेशेंट आते हैं, और इट हैज द हिस्टोरिकल वैल्यू आल्सो। तो यहाँ पे हम रुकते हैं और प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाते हैं। सर ये लास्ट एग्जांपल पे आप अपने कमेंट्स भी दे दें कि क्या क्या प्रोविजनल बन सकते हैं, अगर इस तरह का, जिस तरह का न्यूटन ही का केस की जो एग्जांपल दे रहे थे। मेरा ख्याल है आपने ठीक बताया है, जो आपने चीज़ें बताई हैं मोटी मोटी वही बातें हैं। तो उसमें क्या होता है कि if a person is coming to you get more information, what you need is कि duration is important। सबसे पहले ये होगा कि the duration is important. If it's a brief, could be a brief psychotic disorder, could be a stress induced, could be environmental, could be a drug induced, could be a micropsychotic episode. You'll have to know about the personality. Personality क्या पता भी तो आपने लगाना है ना, जो आएगा आपको एकदम से पता आपको भी नहीं चल सकता, तो जो आप हिस्ट्री लेंगे तो ऐसी चीजें सामने आएंगी। So all the things have to be kind of तो कुछ भी निकल सकता है। तो हमेशा the way forward is you have a broad based kind of a program. You approach the patient through a biopsychosocial mode. Biologically, I would like to investigate the patient. I will have biological tests done. The person, अगर किसी ने कुछ नहीं दिया हुआ तो we can't assume that the patient is right. We'll have to go through organ. We have to find all the tests जो भी उसका examination, बाकी symptoms, बाकी systems, neurological examination, cardiovascular, gastrointestinal. Patient could be harboring a tumor, जो मैं कल बात की थी, could be an infection. आप उसकी जब पूरी डिटेल हिस्ट्री लेंगे, maybe he's having extra kind of sexual activity, कोई STDs हो सकते हैं, syphilis हो सकता है. Patient can have an endocrine problem, thyroid problems हो सकते हैं. I would like to get T3, T4, TSH. Patient might have malnutrition. आप उसके dietary habits पता करोगे. हो सकता है पेशेंट कहीं बाहर से, कहीं सहरा से आया है, वहाँ पे 5-6 महीने रहा है और उसकी डाइट खराब हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है उसका पेट खराब हुआ हो, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो गई हो सकता है द पेशेंट को उसको मारना चाह रहा है, उसको जहर दिया जा रहा है। गाँव में इस बड़ा कॉमन होता है। अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स में बहुत हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स, लेड, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं और स्टेट उसको डिफेंड कर रही होती है, बताती नहीं है। तो
इस तरह की जो चीजें हैं वो ये शो करती हैं कि सो यू हैव टू काइंड ऑफ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज. अगर आपने साइकोसिस में सोचना है तो फिर जो हमने बातें की, यू लुक फॉर thought disorders, delusions, Schneider first ranked symptoms. You will look for secondary symptoms. ड्यूरेशन का हम इंतजार करेंगे कि अच्छा 2 हफ्ते महीना जो है ना नजर रखेंगे, प्रॉबल डायग्नोसिस बना सकते हैं. ये जो सिम्टम्स है ये तो सिर्फ बता रहे हैं साइकोटिक सिम्टम्स हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो इट कुड बी जस्ट अ सिम्टम. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. हो सकता है इट इज नथिंग, इट्स जस्ट काइंड ऑफ something which might be missing from the history. तो कई दफा हमारे पास जो केस आते हैं ना उसमें बाद में पता चलता है कि जी वो डॉक्टर साहब, वो तो हम दोस्त के साथ बैठे थे तो हमने एक चर्च का सूटा लगा लिया और वो मेरे आपके पास आए पेरेंट्स लेके आएंगे साइकोटिक स्टेट में ना, तो उसको तो हिस्ट्री नहीं मिल रही होती सही दफा. तो आपने एज के हिसाब से किसी को नहीं छोड़ना. इफ यू थिंक समथिंग इज देयर, सस्पेक्ट देम, गेट देम टेस्टेड, फाइंड आउट द कॉज, बिकॉज इवेंचुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपको डायग्नोसिस देना पड़ता है. अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज है, रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, वॉलेंस रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना. सो इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं. तो इस तरह हम सोचते हैं आमतौर पर, एटलीस्ट हम इस तरह की बात करते हैं. एनी अदर क्वेश्चंस, देन वी कैन वाइंड ऑफ. सर मेरा ही क्वेश्चन, अगर कोई और नहीं पूछना चाह रहा तो फिर मैं पूछ लूंगा पहले. अगर कोई और पूछना चाह रहा है तो वो पूछ ले. बताएं, आप इसमें लिख भी सकते हैं बाकी कुछ सवाल लिखना चाह रहा हूँ जी. आई गेस और अभी किसी का नहीं. सर आज ही का एक पेशेंट है, आई गेस वो इट विल बी इंटरेस्टिंग, इट इज रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक. सो अ पेशेंट, कैन यू हियर मी सर? हाँ, मैं आई कैन हियर यू. ओके सर. अ पेशेंट जो कि 55 years old फीमेल है, she comes to us in OPD. She is a sanitary worker in Mayo Hospital. For the last 1 month, she has been acting weird. पेशेंट के मुताबिक, घर वालों के मुताबिक ये है कि वो एजिटेटेड हो गई हुई है काफी ज्यादा. जब उससे पूछा जाता है कि इशू क्या है, तो कोई ऑडिटरी हेलुसिनेशंस नहीं है, कोई विजुअल हेलुसिनेशंस नहीं है. द ओनली थिंग जो कि पॉजिटिव फाइंडिंग आ रही है वो ये डिल्यूजन्स है कि उसको लग रहा है कि मेरे बच्चे किसी काम के नहीं है, वो मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरे पैसों के पीछे पड़ गए हैं. मेरा खावंद किसी काम का नहीं है, वो मुझे चाहता है कि मैं काम छोड़ दूं, मैं पागल हो जाऊं, और फिर वो मुझे बार बार चेकअप के लिए लेकर आ रहा है और कह रहा है कि तुम इसकी वजह से अर्ली रिटायरमेंट ले लो और फिर तुम्हारे पैसे वो हड़प कर लेगा, जमीन अपने नाम कर लेगा, दूसरी शादी कर देगा. ठीक है, मैंने अब सॉर्ट ऑफ आपका एक डायग्नोसिस बनना शुरू हो जाता है कि इट इज सम काइंड ऑफ साइकोसिस, जिसके अंदर उसको एक डिल्यूजन चल रहा है कि एवरीवन इज गेटिंग ऑन हर. लेकिन फिर वो कहती है कि मेरी एक बहू है जिससे मैं हर बात शेयर कर लेती हूँ, जो कि बड़ी अच्छी है, जो कि मेरा बड़ा ख्याल रखती है एंड एवरीथिंग. अब प्रोवाइडेड कि आपको भी पता है कि सर हमारे ओपीडीज में इस तरह के इतने पेशेंट्स आते हैं जो कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, जिधर इट्स वेरी कॉमन कि वो एक दूसरे को पागल लेबल कर रहे होंगे, एक दूसरे को मरीज लेबल कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि पैसों के पीछे वो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट. तो इट गेट्स डिफिकल्ट एट टाइम कि आप ये मतलब कि हाउ कैन यू बी सो श्योर, आप किस तरह किसी पेशेंट को टेस्ट करोगे कि आपको श्योर हो जाएगा कि ये डिल्यूजन है कि एक्चुअली इट्स हैपनिंग और इट इज जस्ट अ नॉर्मल थॉट जिसके अंदर कन्विक्शन पहले भी थी लेकिन अब कुछ ज्यादा आ गई है. इन तीन चीजों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आई गेस थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, सॉरी फॉर दैट. नहीं, इट्स जस्ट ऑलराइट, आई अप्रिशिएट. इसमें पहले तो जब आपके पास हॉस्पिटल आ गया तो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द सिम्टम्स. द पेशेंट वाज नॉट एबल टू बी मैनेज्ड एट होम. ठीक है, सो आई वुड लाइक टू फर्स्ट इन्वेस्टिगेट हाउ इट स्टार्टेड. वाज देयर मूड सिम्टम initially, the patient got depressed and then the psychotic symptoms appeared, या पहले psychotic symptoms appear हुए और फिर mood symptoms आना शुरू हुए? इस केस में क्या था? सर इस केस के अंदर साइकोटिक सिम्टम्स और एजिटेशन थी और उसी से काम स्टार्ट हुआ है. देयर वर अ पीरियड ऑफ हाइपोमेनिया
हाइपोमेनिया उसको कह सकते हैं, लेकिन जब उसको मजीद प्रोब किया गया तो इट वाज लाइक घर वाले इसके ऊपर तावीज करवाने लेकर गए थे, तो ये वहां से भाग गई। उसके बाद घर से भागकर वो मेयो हॉस्पिटल आती रहती है, मतलब कि रात को 3 ओके, बजे भाग के मेयो हॉस्पिटल आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर महफूज हूँ, मैं घर में महफूज नहीं हूँ। क्या पेशेंट का नाम क्या है? सर ये नाम कोई रहीला करके था, कोई सैनिटरी वर्कर है, रुबीना या रहीला था। आई वार्ड में कोई सैनिटरी वर्कर है। सो वो मेरे जहन में एक पेशेंट आ रहा था, मैं कहा शायद वो कॉमन एक माई पेशेंट बार बार आती है बाइपोलर की, तो इसका अगर पहले डायग्नोसिस बना हुआ है तो we'll have to look at the previous diagnosis also. नहीं सर, कोई प्रीवियस डायग्नोसिस नहीं है, पहली दफा जिंदगी में ये आए हैं। और इनकी काफी अरसे से ना मैंने जब पर्चियां देखी तो डिप्रेसिव सिम्टम्स के लिए ट्रीटमेंट हो रही थी, मतलब कि लोगों ने फ्लक्सिथिन दी हुई थी, लोगों ने और दी हुई थी, जो कि पिछले 1 महीने के अंदर अंदर ही थी, लेकिन उसके बावजूद ये सिम्टम्स आ रहे थे। मतलब कि इवन वो हमारे सामने बैठ के भी अपने बच्चे को गालियां दे रही थी कि ये हरामखोर है, ये है, ये वो है, जो कि सॉर्ट ऑफ मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा एजिटेशन लेवल हाई है। looks like mood disorder because इसमें सबसे ज्यादा जो चीज prominent है that is mood, और पहले अगर डिप्रेशन एपिसोड था क्लियर कट, अब it's more like and could be an antidepressant induced, वो भी हो सकता है। कई दफा मिक्स एपिसोड भी हो सकता है कि किसी को डिप्रेशन था, किसी को इट्स मोर लाइक मैनिक सिम्टम्स। देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ स्किज़ोअफेक्टिव, अगर दोनों सिम्टम्स इकट्ठे शुरू हुए और इकट्ठी पावर के चल रहे हैं एंड यू आर लाइक, उसमें स्किज़ोअफेक्टिव भी सोचा जा सकता है। तो जी सर। हमेशा तो प्रीवियस हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री में किसी को, उनके फैमिलीज में अगर किसी को साइकोटिक है, दैट गिव्स यू अ क्लू। अगर कोई नशे के पे कुछ हो सकता है, कोई और जी सर। सर ये तो आई गेट इट। जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था वो ये था कि वी ऑल, मतलब कि अक्सर हमने इस लेक्चर के दौरान भी और पिछले लेक्चर्स में वी टॉक्ड अबाउट कि अगर कोई डिल्यूजन के साथ आता है तो वी हैव टू शेक इट। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हाउ कैन वी शेक समवन्स डिल्यूजन जो कि किसी मतलब के घर वाले से एसोसिएटेड है। अब आई कैन नॉट से के, मतलब कि अब एक पेशेंट आई है मेरे पास, उसको लगता है, एक पेशेंट आया है, उसको लगता है कि मेरी बीवी मुझ पे चीट ऑन करना चाहती है। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आपके पास कोई ऐसा एविडेंस? वो कहता हाँ, आज से 5 साल पहले मैंने उसको चीट ऑन करते हुए पकड़ा था, लेकिन अब मुझे हर टाइम लगता है कि वो मुझे चीट ऑन कर रही है, लेकिन मुझे पास कोई एविडेंस नहीं है कि अब वो मेरे ऊपर कर रही है। तो अब नहीं, क्या ये लगता है कि यकीन है? दिस इज व्हाट यू हैव टू आस्क। सर लगता है और यकीन में क्या फर्क होता है? मतलब कि पेशेंट किस तरह रिप्रेजेंट करेगा उसके बारे में? देखो ना, आपको लगता है कि आप लड़के हैं या यकीन है कि लड़के हैं? यकीन है, एग्जैक्टली सर जी। ठीक है ना? सो उसको आप, अगर वो कहेगा मुझे यकीन है, तो यकीन किस बात, कैसे, क्या एविडेंस है? अगर वो कहेगा कि मुझे यकीन है कि ये जो है लड़की ठीक नहीं है, और उसकी रीजन ये कि उसने पहले मैंने उसको पकड़ा था, फिर मैंने उसके फोन नंबर चेक किए, फिर वो मुझे फलाने के साथ बात करते हुए मैंने देखा, अगर तो पूरी स्टोरी बन रही है एविडेंस, और वो औरत भी कहती है हाँ जी मैंने इस तरह कर लिया था, मैं कभी भी कोई हंस के बात कर लेती हूँ, मेरा भी दिल करता है, अगर ऐसी हिस्ट्री बन रही है, फिर तो पर्सन इज इनसिक्योर, देयर आर मैरिटल इश्यूज, फिर तो हम और तरफ चल पड़ेंगे। और अगर वो बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब, ये बड़ी टिपिकल हिस्ट्री है, बुक से ही है, कि पेशेंट इज इन द बाथरूम एंड द हस्बैंड स्टिल थिंक्स कि देयर इज समवन इन द बाथरूम, ही इज चेकिंग, उसके कपड़े भी देख रहे हैं, खिड़की भी देख रहे हैं, हालांकि वॉशरूम में कोई बंदा ना बाहर ना अंदर है। ये क्लासिकल पैथोलॉजिकल जेलसी की एग्जांपल है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर की एग्जांपल है, कि उसको यकीन है, सबूत नहीं है। ठीक है ना? तो ठीक इसमें है हम सर, देखो मतलब क्वालिटी का फर्क। तो शेक इसलिए करना होता है, शेक के बगैर पता कैसे चलेगा कि ये पक्का है कि कच्चा है? सर शेक करने की कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं? कोई आप अपने पास से माइंड में कोई सिमुलेटेड एग्जांपल, या चाहे कल दे दीजिएगा, इफ इट्स नॉट कल दे दीजिएगा। नहीं, देखो एग्जांपल तो यही है कि आप जो बात कहो, आप कोई, जैसे मैंने आपसे पूछा कि यार आप कैसे लड़के हैं, आपको कैसे पता है, क्या सबूत है आपके पास? ठीक ठीक ठीक, मतलब कि सर हमने एविडेंस पूछना है कि क्या सबूत है, इस तरह करके बात चलते रहेंगे। मिसाल के तौर पे आप कहते हो जी मैं लड़की हूँ, लेट्स से, ठीक है, या पेशेंट है वो आपके कहते हैं डॉक्टर साहब मैं जो हूँ, मैं मेरे अंदर पावर है कि मैं गाड़ी को जमीन से ऊपर कर सकती हूँ। ठीक है ना? उसने ये एक बात कर दी उसने। अब आपने बात शुरू की कि भाई आप मुझे बताएं क्या सबूत है आपके पास
क्या आप कर सकती हैं, मुझे दिखाएं इस तरह। अब वो कई किस्म के बहाने बना लेगी, लेकिन वो मानेगी नहीं कि वो नहीं कर सक रहा। वो बंदा ना, शी इज गोइंग टू कम, तो होता क्या है कि शी विल टेक वन एग्जांपल, एक बात लेके उस पर पक्की कन्विंस्ड होके, और कोई समझ नहीं आ रही। जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले, उसका जैसे हमने बात की, डिल्यूजन फ्लेक्सिबल हो सकती है, हो सकता है क्या, अच्छा डॉक्टर साहब आप कहते हैं तो ऐसा हो सकता होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये मान नहीं रही, अंदर से शी इज लाइक यू नो, इसको पक्का इसने ऊपर ऊपर से कह रही है कि बस ऐसे ही। तो कई दफा डिल्यूजनल वाला ना, वो आपसे जान छुड़वाने के लिए कि यार इन्हें समझ नहीं आ रही, तो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब जी कहते ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, डिल्यूजन का आपको उसके एटीट्यूड से पता चल रहा होता है, और आपको होता है कि नहीं यार ये बंदा जो है ना, इसने घर जाके इस औरत को मार देना है। औरत भी कहेगी डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ तो सुननी है, लेकिन ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं दवाई नहीं खानी, मैं बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मिलने ने। और अगले दिन वो कहेगी डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ भी शामिल हो ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है ना। तो जी जी। वहां पे जाके आप यू काइंड ऑफ, तो शेक तो करना पड़ता है। जब आप सोच को हिलाओगे पता चलता है कि वो कितना कन्विंस्ड, कितना उसको गुस्सा आ रहा है, कितना डिफेंड कर रहा है, कितना चीख रहा है, कितना उसका मूड खराब हो रहा है। और वो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल, अदरवाइज वो सही सही सर, बस वो सर वो आई वाज लाइक कि कितनी लिमिट तक होना चाहिए, लेकिन नाउ आई गेट